Taiwan is an island state, uh, much smaller than India. Our population only size of Delhi, 23 million. Yeah. Or Haryana, very small. Yeah. But Taiwan is a big economic actor in the world. And India today is the fourth largest economy in the world, and very active in world affairs. And 30 years ago, in 1995, we began to set up office. So we have an office here in Delhi, and the Indian government have an office in Taiwan. So 30 years has passed. Right now, our economic relation, people to people exchanges are growing steadily. But this is the first time India and Taiwan co-produce a movie together. I remember the first movie I saw is the Devadas from India. It's just like 30 years ago. Yeah. And when I was in, and later I saw Three Idiots. So today I also have the honor to see the person who introduced the movie to Taiwan. Yeah. And Taiwanese, we also love movies. I myself, I'm a movie lover. Every week I watch 3-4 movies. Yeah. And Indian movie, I think Indian movies, every year I think India produces 4,000 movies in the world, right? 4,000. Now, yeah. So it's the biggest market and movie producers in the world. And I think that a movie is about soft power. Movie is about culture. Yeah, movie is about what we know about the world. And this is a very good opportunity. We know each other. Taiwan know more about India. India, a country I love and admire very much. And I'm deeply grateful to Taipei Economic and Cultural Center in India for hosting this event and giving me so much support. Um, Demon Hunter is the first ever Taiwan India co production film. It blends the vibrant culture of Taiwan and India into one epic story. And this story crosses borders and transcends cultural differences. There are many similarities between the culture of Taiwan and India. Both Taiwanese and Indians have very rich spiritual lives and deep religious faith in the divine power. And this, I believe, this belief makes the people of India and Taiwan very resilient, and especially in the face of life challenges. And as you will see in this film, we combine the Taoist way of exorcism with the Kali power, the Indian way of exorcism. And together, the two boys who inherited the exorcism skill from their grandfathers must come together, work together to kill a common demon, Asura. And you will see this bringing the two culture together in this way. Good evening, all. Thank you so much for coming over here and Honorable Excellency and honoring our labor of love at the Taiwan Film Festival as the opening and special screening. Um, this could not have been a better platform for us because this is the first ever Taiwan India co-production in the world, which is, and Cindy absolutely covered it all. लेकिन ये एक विजन एक शुरू हुआ जहाँ से हमारा यही we wanted to actually bring the two cultures, the ethnic commonalities हैं. This is just not about a film, it's more like a vision coming together. And but yet it's got a lot of elements from Indian mythology, and हमने काफी सारी छोटी-छोटी चीजें इसमें बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से डाली हैं और जो आप देखेंगे भी. And eventually it is something which is a happy movie but with a strong message, a universal message. The name Demon Hunters itself is something which is ये होता है कि भाई हर एक अपनी लाइफ में एक डिमन हंटर आप सब लोग डिमन हंटर्स हैं क्योंकि कुछ भी लाइफ में बसर होती है तो आखिर में हमारा ही करेज स्ट्रेंथ एंड फेथ काम आता है. And this is exactly what we have portrayed in the film, but in a very happy way at the same time.
till deep, and I'm hoping that you will enjoy. And this kind of a collaboration is something which is historical for us. His Excellency, the Ambassador, my two robust producers, Cindy and Gayatri, and जयंता जी ताइवान में रहते हैं मगर ये मणिपुरी है, तो इन्होंने मुझे शौक दिया था जब मैं पहली बार ताइवान फिल्म शूट करने गया। मैं इनसे बड़ा रिस्पेक्टफुली चाइनीज़ एक्टरों से बात कर रहा हूँ, ये मुझसे हिंदी में बात करना शुरू हो गए, तो मैं हैरान हुआ था इस बात से। इनका रोल बड़ा कमाल का है, आप देखेंगे फिल्म में। इससे ज़्यादा मैं कुछ और बात तो आपको नहीं बता सकता जो सिंधी ने या गायत्री ने बताई है फिल्म के बारे में। पहली बार ऐसा हुआ है, ज़्यादातर आप लोगों ने भी देखा होगा दैट यू नो व्हेनेवर यू मेक अ फिल्म विच इज़ अ क्रॉस कंट्री फिल्म, ज़्यादातर लव स्टोरी होती है कि एक लड़का यहाँ का, लड़की वहाँ की, या इस टाइप का होता है कि उसमें फिर कुछ ना कुछ अड़चन आती है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। अगर आपको मैं बड़ा एक बेसिक सा एग्जाम्पल दूँ, जिस तरह से हम एक्शन फिल्म्स देखते हैं, कॉमेडी फिल्म्स देखते हैं, हांगकॉन्ग की, चाइनीज़ की, हम सब लोगों ने देखी हैं, बचपन से बड़े हुए हैं, उस तरह की एक फिल्म है। और कमाल की बात यह है कि जब मैंने कहानी पढ़ी तो मैं भी शॉक हो गया था कि किस तरह से दो कल्चर्स को मिला के, दो मैथोलॉजीज को मिला के इस कहानी को जो है बुना गया है। तो बहुत ज़्यादा फिल्म के बारे में मैं आपको इस टाइम कुछ बताना नहीं चाहूँगा। मैं इस फिल्म पे जो अभी जो अर्जुन प्ले करा उसके मैं दादाजी का रोल करता हूँ। तो शुरू में मुझे लगा कि हम दोनों कैसे, दादाजी और उसका पौधा कैसे लग सकता है ना, थोड़ा सा। सो बाद में मकाम में मेकअप उस पे करके मुझे कन्विंस किया कि हाँ, आई कैन बी हिज ग्रैंडफादर। हाँ, तो ये फिल्म इस तरह का, मैं एक ताइवान में रहता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी दैट इज हैपनिंग एंड ताइवान एंड इंडिया इज कोलैबोरेटिंग, इज हैपनिंग, इज माय ड्रीम, but it's simply make my dream, you know, become true. So it's I first film this collaboration film. I'm part of that. Is very happy, and I'm pleased to that. I'm the stage actor, and I got the chance. Is just I'm so lucky. I feel that, and others is I think I have nothing to say. So just watch the film. Then after that we can. सोची होगी इन लोगों ने, यू नो, हर बार होता है ऐसा कि यू नो ऑब्वियस से एक्टर्स या पीपल हु हैव मेड द फिल्म की बहुत अलग कहानी है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो वाकई आप बोलेंगे यार ये कैसे सोची है इन लोगों ने, इस टाइप का। थैंक यू। So, any question? Yeah, ma'am. It's called masala. प्रोड्यूसर मैम से मेरा सवाल है कि आपका जो है कि आइडिया कैसे आया ये दोनों देशों को लेकर, ये इंडो और ताइवान का जो है कि कंबाइन इसका होना चाहिए, तो वी लाइक टू नो अबाउट कि हाउ दिस आइडिया कम फ्रॉम योर माइंड। They want to know how did you get that idea? The idea about making Idea Yeah, of yeah. making these Movie two, between the two countries and the cultures. and then I can answer also. Because these are the two most interesting countries to me. In fact, जब भी मेरी पहली बार ताइवान में मैं सिंधी से मिली, हम एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं, and co-production has been both of our vision. And when we saw, and when I went and saw, and I was like, oh my God, यहाँ पे भी उतनी ही प्रार्थना होती है, यहाँ पे भी उतनी ही मंदिर है, और people are so much drawn. Like for instance, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जैसे हमारे नवरात्रे होते हैं, वहाँ पे भी 9 दिन एक देवता है, उनको पालकी में लेके जाते हैं। सो कई सिमिलैरिटीज हमको देखने के लिए मिली वहाँ पे, एंड तभी हमने यही कहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये हम सोच ही रहे थे ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहाँ दो कल्चर एक साथ आए साथ में। आई थिंक दुनिया को अभी वो चीज़ बहुत ज़रूरत है। You know, basically her whole idea was always being like the oneness, the universal concept of humanity, because emotions are the same all over the world. It's the way how stories are told, right? We cry in the same language, we laugh in the same language. It's just that the languages may change, but the emotions are always the same. So, and when it comes to culture and religion, and you know, वहाँ पे भी उतनी ही मान्यता है, faith है, or all of these things are there. So I think that is where it all started. So in how many languages are going to release this movie? There's Chinese, Taiwanese, English, Hindi. That is something. Yeah.
वो आपको फिल्म में हमने बहुत ही प्यारे तरीके से इन सब लैंग्वेजेस को डाला है ऑलरेडी। अभी तो फिलहाल हम ताइवानीज सबटाइटल्ड इंग्लिश ताइवान में रिलीज होगी 31 दिसंबर को, एंड उसके बाद में सब्सिक्वेंटली फेज वाइज वी विल गो ग्लोबल। उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से या कौन सी लैंग्वेज होगी। शूटिंग अगर बात करी जाए तो कहाँ हुई ज़्यादा, ताइवान में हुई या ताइवान में हुई है। ताइवान में? हुई है। हाँ, तो काफ़ी सारी फिल्में की हैं। इनफैक्ट मैंने तेलुगु में भी तकरीबन 11 फिल्में की हैं। तो एक हमेशा से ये रहा था कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी काम किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि इंडियन एक्टर्स की अब थोड़ी सी पहचान अच्छी हो चुकी है, नहीं तो आज तक इंडियन एक्टर्स को बहुत ही क्लीशेड सा इंडियन कोई ना कोई रोल दे देते थे वो। तो मुझे जब ये गायत्री ने इस फिल्म की कहानी बताई, तो मुझे ये चीज़ की सबसे पहली अट्रैक्शन थी कि इसमें आप अपनी कंट्री को लिटरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब एक भीड़ का हिस्सा बन गए हैं उसमें। आप भी अपना जो बैकग्राउंड है, आपकी जो कंट्री है, आपकी लैंग्वेज है, इसमें हिंदी भी बोली है मैंने काफ़ी सारी जगह पर, आप देखेंगे। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले अपने देश को, आप इस तरह की फिल्म में एक रोल करके नाम रोशन करें, तो सोने पे सुहागा है, क्यों नहीं करेगा कोई एक्टर। दो बंदे हैं, एक अर्जुन, फिल्म जो दो देशों के रिलेशन के लिए बात कर रही है, उसमें आपका किरदार क्या है मूवी में, वो जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का। मेरा किरदार, वैसे आप फिल्म देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मगर एक संक्षेप में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक लड़का है जो इंजीनियर है, जो ताइवान में रहता है, और उसको नहीं मालूम कि उसको इनहेरेंटली अपने फैमिली से, अपने बुजुर्गों से, अपने दादाजी से ऐसी पावर्स मिली हुई हैं जिसका उसको आइडिया ही नहीं है। तो किस तरह से सिचुएशन जो है एक फिल्म में बनती है, और किस तरह से वो अपनी पावर्स को चैनलाइज करते हैं और डीमन हंटर बन जाते हैं। इतनी मूवी जो है कि यहाँ पर दिखाने वाले हैं, एक तो जैसे आपने बताया कि आज शो होने वाला है, इसके अलावा और कौन सी मूवी होने वाली है रिलीज? I think there are 2 more movies. Okay. Tomorrow there are 2 movies. One is called Hunter Brothers and another one is called A Chip Odyssey. So there are 2 more movies. हमारी वाली आज ओपनिंग वाली है, कल 2 है। कल 2 होनी। इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारी फिल्म डेमन हंटर्स फेज वाइज रिलीज होगी, बिकॉज काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि व्हेन इज द फिल्म रिलीजिंग इन इंडिया, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। राइट नाउ देयर इज अ ताइवान फिल्म फेस्टिवल गोइंग ऑन इन दिल्ली। तो वी आर लकी एंड वी आर हैप्पी दैट आवर ऑनरेबल एम्बेसडर डिसाइडेड कि हमारी जो ये फिल्म है इसको भी यहाँ पर एक एग्जिबिट किया जाए। और ताइवान में ये 31 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। उसके बाद फेज वाइज हम लोग ग्लोबली भी जाएंगे और इंडिया की रिलीज़ भी होगी। अब इंडिया रिलीज़ जब करेंगे उसको हिंदी में डब करके करते हैं या फिर उसको सबटाइटल करके करते हैं, दैट वी विल सी इन टाइम टू कम। ओके जी। अर्जुन, मूवी की शूटिंग ताइवान में हुई ज़्यादातर, क्या आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस, क्या चीज़ वहाँ पे आपने स्पेशल देखा, वहाँ पर क्या खाना वहाँ पे स्पेशल आपने खाया शूट के दौरान, थोड़ा ये तो फर्स्ट डे वाला बताना चाहिए। फर्स्ट डे वाला बनता है बताना, जब लैंड हुए और जब गए रेस्टोरेंट में खाना के खिलाया। हाँ, खाना तो ये था कि शुरू में तो आप अवॉइड करते हैं ना कि मतलब लेट मी बी हेल्दी एंड ऑल दैट स्टफ। एज एन एक्टर सबको ही होता है कि मैं बड़ा हेल्दी खाता है। फर्स्ट डे आई रिमेंबर सिंडी वाज काइंड एनफ टू टेक अस टू अ वेरी ब्यूटीफुल होटल कॉल्ड द ग्रैंड, एंड मेन्यू समझ नहीं आ रहा था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं खाई। एंड देन मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा नॉन वेज नहीं, चिकन खाता हूँ, चिकन खाता हूँ। तो एक प्लेटर पे बॉइल्ड चिकन आ गया, एक प्लेटर पे बॉइल्ड ब्रोकली आ गया नमक डाल के। तो मैं चलो ठीक है, बट अल्टीमेटली इट ऑल गॉट सॉर्टेड। इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं वहाँ पे, देयर आर अबाउट 200 इंडियन रेस्टोरेंट्स, तो ऐसे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उतनी ही वेजिटेरियन फूड है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ ये बहुत ही यूजुअल विचारधारा है कि इट्स इन ताइवान साइड इन साउथ एशिया में आपको नॉन वेज ही ज़्यादा मिलता होगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट अमेजिंग वेजिटेरियन फूड which is there every place that Cindy took me and took us is like I've never had that kind of vegetarian food ever, even in India. बिकॉज जो आपने सुना है अभी तक, यू विल बी सरप्राइज कि यार ये कैसे सोचा इन्होंने। Yes sir, look here. सर, जनता सर आइए ना इधर। सी लेफ्ट प्लीज, सी लेफ्ट। सबको आराम से जी। ये उम्मीद तो हर एक्टर को अच्छी ही रहती है कि हमने जो फिल्म की है, खास तौर पे
बॉलीवुड की फिल्में, हिंदी फिल्में करने के बाद या तेलुगु फिल्में करने के बाद में, और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स के साथ काम करने के बाद में एक इंटरनेशनल मंच पे फिल्म करने का मौका मिला है, तो आदमी उम्मीद तो यही करता है कि सब कुछ अच्छा हो और लोगों को फिल्म पसंद आए। तो मेरी भी उम्मीद ये रहेगी कि जो हमने एक एफर्ट किया है, फर्स्ट टाइम इंडिया और ताइवान 2 कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं इस फिल्म के ऊपर, तो लोगों को ये पसंद आए, क्योंकि कहानी थोड़ी सी अलग तरह की है, दोनों कल्चर्स को मिलाती हुई, दोनों माइथोलॉजीज को मिलाती हुई, दोनों कंट्रीज के जो एक बैकग्राउंड है उनको साथ में लेकर आती हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी ही होगी। इस फिल्म एक्शन कॉमेडी है जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि 2 देशों के बीच की कहानी तकरीबन ये इस तरह से एज अ लव स्टोरी कही जाती है कि क्रॉस कल्चरल है, तो लड़का यहाँ का, लड़की वहाँ की, या वाइस वर्सा। ये वैसी नहीं है, ये 2 लड़कों की कहानी है। जो एक मैं हूँ इंडियन एक्टर वहां पर जो रह रहा है एक इंजीनियर बन के, और एक जो ताइवानीज एक्टर है जेसी लिन, वो अपना एक यूट्यूबर है, और किस तरह से कुछ इस तरह का वाकया होता है कि दोनों मिलते हैं आपस में आके। क्योंकि मैं कहानी के बारे में आपको ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इनके अंदर एक इस तरह की शक्तियां हैं जिनका इनको कुछ आइडिया नहीं है। 31 दिसंबर को इस फिल्म ताइवान में रिलीज हो रहा है, पर किस हाँ जी, आज स्क्रीनिंग हो रही है, क्योंकि ये एक ताइवान फिल्म फेस्टिवल जो दिल्ली में हो रहा है, उसके तहत हम लोगों ने 3 फिल्में, ताइवानीज फिल्में जो है एग्जिबिट करने का हमें मौका मिला है। तो डेमोनेटर्स उसमें से एक है, और खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि इंडिया ताइवान कोलैबोरेशन। तो अभी 31 दिसंबर को ये फिल्म ताइवान में रिलीज हो रही है, और फेज वाइज जो है बाकी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया फेज वाइज रिलीज होगी। तो मैं भी चाहूंगा, और वैसे भी जो प्रोड्यूसर्स है उनका भी पूरा ये एक आइडिया है या उनका एक प्लान है फिल्म को हमारे इंडिया में इंडियन ऑडियंस के सामने लाने का। थैंक यू। अर्जुन जी एक मिनट बस, वीडियो आ गई। खुशी एक सेकंड।